નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો પરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સર્વાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ, મંગલાનં ચ સર્વેસિં, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ, નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ, અગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ, સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ, સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ, સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય સત્યમ નિશ્ચયવંદ્ય, તેત્રીસ કોટી દૈવગણ, તેત્રીસ કોટી દૈવગણ, વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ, વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ, જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં, જગ કલ્યાણય મંગલમય દ્યો આશીષમ, મંગલમય આશીષમ, સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો, સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો, ગલતી ભૂલ કો માફી દ્યો, ગલતી ભૂલ કો માફી દો, વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો, વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો, નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો, નિશ્ચય ને અભિવૃદ્ધિ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈએ આ પ્રભાવ, but I didn't understand the meaning. પ્રભાવ એટલે ઇન્ફ્લુઅન્સ. પ્રભાવ એટલે ઇન્ફ્લુઅન્સ. દાદા એવું કે ભાઈ આપણો મહાત્મા કેવો હોય કે કોઈના પ્રભાવમાં ના આવે. સામાન્ય રીતે કેવું થાય
એની વાણીના પ્રભાવમાં આવીએ કોઈની. કોઈ પૈસા હોય તો એના એ રીતે પ્રભાવમાં આવી જઈએ. તો કે જાત જાતની રીતે એ તો પ્રભાવમાં જ આવી જતા આવીએ. તો પ્રભાવમાં આવી જાઓ એટલે તમારા પડછાયામાં આવી ગયા, શેડોમાં આવી ગયા, ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવી ગયા. તો પછી ત્યારે સાચી વાત સમજી ના શકો. પકડાય નહીં ભાઈ. ગ્લાસીસ ચેન્જ કરી નાખ્યા એટલે એના ગ્લાસીસ પ્રમાણે તમે જોતા થઈ ગયા. કે ત્યાં બીજું કશું કરવાનું નથી. ખરેખર બીજી રીતે સમજે તો જે પ્રભાવમાં એ જે કયા આધાર આવ્યા કે બહારના વિનાશી ભાગને જોઈને, બહારના વિનાશી ભાગના સંજોગો જોઈને પ્રભાવમાં આવ્યા ને. પણ ખરેખર પ્રભાવમાં શેના આવવાનું હોય? માયલા ભગવાનના. કે એનો તો પ્રભાવ પડતો નથી આપણને. સમજાય? એટલે કિંમત શાની છે તો કે તમે વિનાશના પ્રભાવમાં કે ભાઈ અવિનાશના પ્રભાવમાં રહે. અને સત્સંગમાં દાદાએ કહ્યું કે સમાધિ એવું કહેવાય કે જે રાગ દ્વેષ ના હોય તો એ બધું હોય છતાંય તમે સમાધિમાં રહી શકો તો સમાધિ કહેવાય. તો આ પ્રભાવની વાતો અમે તો બેસાડ્યા શુદ્ધાત્મામાં દાદાએ પાર્ટીશન તો પાડ્યું, પણ જે આ ભાગ જે કાઢી લે છે કામ એ પછી સાંજે આવીને જોવાનું કે આખો દિવસમાં અંજનાએ ક્યાં ક્યાં પ્રભાવની ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવી ગઈ હતી કે પછી ત્યાં ચોખ્ખું કરવાનું છે. જે પ્રભાવમાં આવે ત્યાં સમજાય કે નહીં. પણ દાદા કે આપણી મનની હેબિટ જ છે, એ તો કશું લેનું દેનું આપણે હેબિટ છે ને. મન તો ખાલી વિચાર બતાવે છે, બીજું કશું કરતું નથી. મને એવું કહે છે કે ભાઈ અમે જે બતાવે છે તમારે ફરજિયાત કરવું પડશે. પણ બતાવે છે કે ઇન્ફ્લુઅન્સ વાળું વસ્તુ છે એટલે મન તો ખાલી બતાવીને ત્યાં ખસી જાય છે. પછી એ આપણી પાછળ નથી પડતી. એટલે પછી કરવું કે ના કરવું તે આપણે નક્કી એટલે ત્યાં આપણે આને કેવું પડે ને 5 નંબર 1 ને તારે નક્કી કરો તારા હિતમાં કયું છે. કયું હિત? કે વ્યવહારનું હિત, સંસારનું હિત? કે ના, એ તો બુદ્ધિ તમને સંસારનું હિત જ કરાવડાવશે. તો ત્યાં સમજાય કે ના ભાઈ ખરેખર આપણે મારો આત્માનું હિત મારે સાધવાનું છે, ત્યારે કામ નીકળે. પણ જેટલું ઉપર આવ્યું પણ જેટલી વસ્તુ સંભાળથી નીકાળવાનું છે. ગુજરાતી ફાવે છે? સફળતા આજે આગે ગુજરાતી અમને સમજાય છે? મને તો સમજાય છે ના ના અંદર એ તો ભાઈ હિન્દીમાં વાત કરી. એટલે यहाँ समझने का इतना ही है कि हम किसके प्रभाव में विनाशी का या अविनाशी का. अभी जो मन दिखा रहा है, बुद्धि दिखा रही है, तो मन तो केवल विचार दिखा के हट जाता है. फिर चित्त का बुद्धि का रोल आता है ना अंतस्करण में. तो बुद्धि क्या करती है कि आपको इमोशनल करती है. ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ना करे तो so मन बतावे છે. The mind is showing you something and then the decision is વ્યવહારમાં કેવી રીતે, how do you behave in normal circumstances in the outside showing and how do you clean on the inside. કે આપણે this came up for Anjana on the inside. This is what she has to clean up. My own lobe or whatever.
जो दोस्तों को हरकत करता है बातें आती है, या नुकसान तो एવી વાતો હોય તો ત્યાં પછી ઉધર બોલना पड़ता है इसका भी प्रतिक्रमण करो. That part's the easy part, but when it's good stuff, like उधर just basic उधर stuff, क्या होता है कि जहाँ अंजू बहन की डिजाइन के हिसाब से आता है right? तो उधर तो अच्छा लगता है. But even good things or bad things, ये सब भी जावे छे. हिसाब से Without an ना हिसाब, it can't come, हिसाब right? से आती है. हाँ. हिसाब से आती है कब बोलेंगे आप After कि आपका जब डिस्चार्ज एंकर है उसमें मेरापना खड़ा नहीं होता है, होता पण ઊભું ના થતું હોય ત્યાં ડિસ્ચાર્જ બોલીએ તો ચાલે, કે હિસાબ થયા જેવું બોલીએ તો ચાલે. So in the moment that it's come to the mind's attention, ये क्या है, कैसी बात है? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बराबर है, सामने से रॉन्ग साइड पे ट्रक आ रही है, तो ऐसा बोलते हैं मेरे हिसाब में जो होगा होगा, no. बोलते हैं ऐसा? उधर बोलते हैं ऐसा? क्यों नहीं बोलते? उधर परिणाम दिखाई देता है कि मैं राइट लेन में उस बात सब सही है, लेकिन फिर भी वो बात पकड़ के नहीं रखते हम. क्यों? कि उधर हमें परिणाम दिखाई देता है कि अगर राइट लेन में मैं वो ऐसा करके चलते जाएंगे तो ट्रक से एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान ट्रक को होगा कि हमें होगा. But it's not guaranteed if you don't avoid the accident, somehow the other person won't sort of an accident avoid that. Do you know what I'm saying? This is the एक काम nature करना, of it. एक काम करना, हमारे हिसाब के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, No? घर पे वापस हो जाएंगे, आंख बंद करके गाड़ी ड्राइव करके जाना. Probably क्यों? okay. वो हिसाब में होगा तो ही एक्सीडेंट होने वाला है, सीधी बात है. हिसाब नहीं है तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, ऐसा करते हैं. But you're making the decision to hurt the least number of people, yourself included, when you're trying to avoid the accident, right? तो यहाँ बात समझने की क्या है कि ये जो आधा ज्ञान पकड़ के बैठता है ना, तो डेंजरस हो जाता है. What happens? आधी बात पकड़ के चलते हैं Yeah. या आधी समझ पकड़ के चलेंगे तो खुद को ही नुकसान करेंगे. नुकसान किसको होगा उसमें? But if these are all karma full anyways, what difference? पर कर्म फल है, पर कर्म के बीच क्या बोए हमें तो मालूम ही नहीं है. एक्सीडेंट करने का बीज वो क्या है कि कौन सा बीज बोए वो तो हम जानते ही नहीं है. दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई खुली आंख से गाड़ी चलाओ, कंप्लीट जागृति के साथ चलाओ, एंड तक एक्सीडेंट टालने का हर संभव प्रयत्न करो. उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया तभी समझ रहे मेरा हिसाब ऐसा था, But this is पहले से all, नहीं. this is all Anjana's talking. It's not Shuddhatma where Dada put us, right? हाँ बराबर है, बात तो अंजना में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो समझ सही करने की वो अंजू बहन की करने की है. अंजू बहन की समझ सही हो गई तो सही समझ किसको बोलेंगे? वो तो फिर मार खाने की नौबत आएगी नहीं. दूसरी बात, और हमें शुद्धात्मा में बैठेला होय तो हमें तो अंजना ने जोता रहे यार, राइट? हाँ बराबर है. आप शुद्धात्मा में स्थिर बैठे तो अंजू बहन को देखते रहेंगे तो अंजू बहन को प्रज्ञा शक्ति जागृत करेगी कि नहीं करेगी? वो सचेत करेगी ना. देखिए यहाँ तो हम क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब में जो होगा वो होगा. You still have to be careful. I'm saying, हाँ, but तो मैं आपको who वही is बता. doing the action is Anjana, it's not us. आप एक्शन अंजना बहन की है, उसमें कोई शंका है ही नहीं. जो क्रिया का भाग है, करने का भाग है, जय सच्चिदानंद, वो किसका है? जय सच्चिदानंद. क्रिया किसके भाग में दिखाई देती है? ये मन वचन क्या के भाग में है?
वो तो क्रिया होने वाली है, उसको तो आप ब्रेक लगा ही नहीं सकते। सीधी बात है। तो करने का क्या? तो इसको बोलने का भी ऐसा करना कि किसी को चिल्लाना नहीं पड़ा, कोई अवाज ना करो પડે તમારી સામે, તો બોલવું ના પડે એવું કરજો છે, એટલું તો કહેવાય ને। यहाँ करके यहाँ व्यवहार में हर संभव प्रयत्न करने के बाद, एक्सीडेंट टालने के हर संभव प्रयत्न करने के बाद फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तब समझने का मेरा हिसाब ऐसा था, पहले से नहीं। रहना नहीं समझे जिज्ञासा में ना हिंदी समझा से Yeah. तो हम First class. हम जो तुम गुजराती थे वो बात ध्यान रखो, सफलता बनता है अवसर नहीं। ગાડીની એક્ઝામ્પલ ઈઝી છે પણ હું અંજનાની એક્ઝામ્પલ કહું તમને। એક રેન્ટલ છે આપણી, તો એ રેન્ટલમાં એક જણ કોન્ટ્રાક્ટ લખીને આપ્યો કે this is how much of it, દર મહિને 5 તારીખે લેટ તો લેટ જ એટલે આપણે હવે અંજનાને શું કરવાનું અને ફોન કરવાનો કે either pay your rent or pay your rent, પણ અંજનાની અંદર અડવું ના કે ખાલી અંજનાને બોલવું પડે કેટલું દિવસ અને થોડુંક અકળાઈને, પણ પછી વચ્ચે વચ્ચે ત્યાં શું પડે છે, હું એકથી ચોખ્ખી નથી ને તો પછી થવા માટે અંજના સેન્સિટિવ થઈ જાય, તો પછી નેક્સ્ટ મંથ આવે તો પછી હવે અંજનાને શું કરવાનું, આને કાઢી મેલું આ લોયરને, પછી દાદાનું આઈડિયા આવે કે લોયર બોયરને બોલાવવાના યા તારી હિસાબ આવી, ઓકે તો આ હિસાબ કેવી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનો, अब यहाँ क्या है कि व्यवहार કરતી કરતી પડી જાય છે અંજના। એટલે બહુ રોલ નથી બ્રેક પાડવી, જેટલું ચોખ્ખું રહે ને તો ઈઝી। प्रॉब्लम खड़ा कब होता है कि आप रोल प्ले करने के लिए खुद वो अंजना बन हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। હું કહું છું ને, અંજનામાં પડી જાઉં છું। क्योंकि उधर क्या है कि उधर केवल आपको मान्यता खड़ी होती है कि मैं ही अंजना बहन हूँ, पिछली जो प्रतिध्वनि आती है उसके आधार पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं ही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में क्या है कि सही मायने में आप करने वाले है ही नहीं, ये तो केवल बिलीफ है, मान्यता है। માટે પેલાને અહીંયા બોલાવી હતી સત્સંગમાં, ठीक है, यहाँ व्यवहार में क्या आप रोल कर रहे हैं, आप उसको डांटेंगे भी सही, लेकिन फिर भी डांटने के बाद भी आप क्या कैसे रहेंगे, एकदम नॉर्मल इमोशनली हो जाएंगे। પણ પછી મન શું બતાવે, અંજના લેટ ગો કરે તો એ તો મફતમાં બેચીને થઈ જશે મારે। यहाँ पहले यहाँ So how do you यहाँ जब रोल प्ले करने का तो क्या होगा, व्यवहार कैसा रहेगा? સુંદર रोल प्ले कर रहे हैं आप, Yeah. स्टेज पे ड्रामा कर रहे हो, तो रोल प्ले करने में गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। when you're playing a role or हाँ। when you're watching? When you are playing role on the stage, Yeah. you are acting on the stage. Make mistakes. Yeah. We don't commit mistakes. No. क्योंकि उधर तो डायरेक्टर ने बोला है कि गलती करेंगे ना आपकी सैलरी कट जाएगी। Oh, but you have to do it again then. They don't do next take कर से practice तो होगा। देखिए यहाँ ये बात समझिए कि यहाँ आपको रोल प्ले करने का है, अंधापन का, अंजनापन हो नहीं जाने का है। सही मायने में हम शुद्धात्मा है, अंधापन नहीं है। ये अलग करने का फिर बोलने का अंधापन को, भी रोल बराबर प्ले करना, नहीं तो सैलरी कट जाएगी आपकी। तो रोल प्ले कर रहे हैं आप तो इमोशनल हो गया, तो टाइम से पेमेंट आया कि नहीं आया, आप इमोशनली हो जाएंगे।
व्यवहार में किसी को डांटना भी पड़े तो आप डांटेंगे भी. But you have to show the anger in order to be अरे, angry. you will just show that you are gone angry. You got angry. Ah. But But you will inside not be. you're not angry. You will not become angry. Because I gave eviction notice, put it on it, and I just waited. I said, "I'll दादा अबे, तुम्हारे पेपर पर लिख के भी मैसेज भेजना पड़ेगा. Right. लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा. Right. ठीक है, अभी आप वो जो व्यवहार है वो व्यवहार सही ढंग से नहीं करेंगे तो मार तो आपको ही खानी पड़ेगी. मैं सही रोल- खाती हूँ. रोल बड़ा प्ले नहीं करेंगे तो मार खाने का संजोग आएगा. ठीक है, व्यवहार में तो जो रोल प्ले करने का वो करना ही पड़ता है. वो रेंट टाइम पर नहीं है तो उसको बोला बेबी नेक्स्ट मंथ आप खाली कर दो. પછી મન બગડી ના જવું પડે જોઈએ. Right? Like that. यहाँ असर क्यों होती है, मन क्यों बिगड़ता है? आप खुद अंजनाबन हो जाती हो इसलिए. હા પણ પછી સમજાય ને અંજનાને કે આ તારી હિસાબ आप मतलब फिर बातचीत तो फिर दूसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए ना. કેટલી વાર હોતી है. तो बोलने का ना कि बार बार गलती क्यों करते हैं. બાર બાર બોલવું પડે છે. अभी तो जॉब पर से निकाल देना पड़ेगा. નથી નીકળતી. She keeps making the same mistakes. तो यहाँ व्यवहार में तो बोलना पड़ेगा ना आपको. ठीक है, उधर आप रोल प्ले करेंगे ना तो उधर आप इमोशनल होना आपका बंद हो जाएगा. इमोशनल पार्ट दिखाएंगे लेकिन भीतर से आप सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे. That's what Dada meant when he said, sleep is easy if you are clean on the inside. Doesn't matter what's happening. क्लियर. आप आपकी गद्दी पे बैठे हो, आप शुद्धात्मा की गद्दी पे बैठे हैं और अंदर को देख रहे हैं, जानते हैं तो प्रॉब्लम कहीं खड़ा होने वाला ही नहीं है. તો સામે- સામે છે કે શુદ્ધાત્મામાં બેઠેલી છું. હા, પણ- શુદ્ધાત્મા તો એવું मतलब अभी अभी જોનારા बात, જાણનારો ये હોય. आपने बात अच्छी बताई. क्योंकि यहाँ एग्जैक्टनेस में शुद्धात्मा पद में रहते आप तो आपको असर होनी नहीं चाहिए. आज्ञा हम पालते हैं लेकिन आज्ञा कैसे पालते हैं? बुद्धि से. आज्ञा का सही ढंग से पालन होता है तो आपको बोझा खड़ा होगा ही नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकता है. तो बोझा खड़ा हुआ इसका क्या हुआ कि सही ढंग से हम आज्ञा नहीं पाल रहे. आज्ञा ऐसे कि बोझा खड़ा करेंगे नहीं, बोझा है वो ऊपर से हट जाएगा. आज्ञा में रहने के बाद भी भारीपन लगता है तो नहीं समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है. That's easy because जब भारी लगे तो तरत જ ખબર પડે કે અંજનામાં ઘૂસી ગઈ છું. वही बात बता रहा हूँ. એ તો easy છે. પણ આ જે ફાઇલ નંબર 1 અંજના છે એટલે રિયલ તરફ શુદ્ધાત્મા પણ રિલેટિવ ભાગ અંજના છે. એટલે इधर પણ રિયલ ભાગની જે feeling હોય, what is that feeling? I don't know. Because it's Anjana's buddhi for sure. Because जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. because feeling is फीलिंग किसको आएगी? Anjana. Buddhi. किसकी फीलिंग किसको आएगी? Anjana. अब अन्नाबन को किसकी फीलिंग आएगी? शुद्धात्मा की. Yeah, like how do you know you're sitting in Shuddhatma? फिर बात समझो कि शुद्धात्मा है सूक्ष्मता में, वो अंजनाबन है वो स्थूलता में. तो सूक्ष्मतम का अनुभव स्थूल को होगा. और दादा ने था तो है. How did Dada do it? हाँ, पर ये बात समझो, आप जो पकड़ रहे हो ना बात, Yeah. How does दोनों- the subtle be in the gross? The gross can't be. दोनों प्लेन अलग है.
Dada was dancing तो on जो both जो planes. स्थूल भाग है वो कभी भी सूक्ष्मतम को पकड़ ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। स्थूल भाग है वो विनाशी है और हम अविनाशी है। अविनाशी का अनुभव विनाशी कैसे कर पाएगा? इसलिए यार शुद्धात्मा आप हो, उसका अनुभव अन्ना बहन को नहीं होता है। आप खुद वो अनुभव कर रहे हैं। એટલે જ બુદ્ધિ ચાલે છે ને, બુદ્ધિની વાત છે, right? आप पहले बुद्धि के हिसाब से क्या हो रहा है? बुद्धि आपको क्या करे, घुमा रही है Yeah. कि भाई आपको अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसको अनुभव, ये मनोवचन का अनुभव थोड़ा होने वाला है। उसको तो उसकी इफेक्ट पर से पता चलता है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका वो जो अनुभव क्या, उसका प्रमाण क्या है। तो चिंता बंद हो जाती है, टेंशन नहीं होता है, वो सब परिणाम है। निराकुलता रहती है। अनुभव इसको तो होने वाला ही नहीं है, ये मनोवचन का है। तो AM Patel દાદામાં full શુદ્ધાત્માથી વાણી નીકળતી હતી. So how do you know the difference? અમને આંખોથી લાગે AM Patel વાત કરે છે. અમે બરાબર. કહે છે this is Anjana who's talking right now. Anjana's buddhi, Anjana's mind. Because Dada has already seated us. दादा In the दादा सूक्ष्म- उगन की दशा कैसी थी? या मेरी बानी है, कितना अच्छी बात की, ऐसा भी कभी नहीं बोलते। आज बहुत अच्छी बात निकल गई, ऐसा कभी उनसे मुंह से शब्द निकला ही नहीं है। So once he put us in that position, everything that's discharging from this is ours also? Our recording also? Or is this Anjana's minds? यहाँ क्या कि मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का रोल अलग अलग है। वो किसके भाग में जाता है? देखिए मन वचन का है, प्रकृति के भाग में जाता है। और हम कैसे है, शुद्धात्मा कैसा है? तो कि ये मन वचन का के मन बुद्धि चित्त अहंकार के भाग में जो भी हो रहा है उसके केवल देखने और जानने वाले हैं, नोअर एंड सीयर है। अभी उधर आप करने जाएंगे तो क्या होगा? Knower and seer is not the doer. हाँ। We don't have to do तो anything. उधर करने जाने में सब डुअरशिप में चले जाते हैं। That's right. और डुअरशिप में चले गए तो अनुभव कैसे होगा? But once he gives Gnan jab vidhi didi, right? Pragna Shakti Mukeli. So what part is the Pragna Shakti is reminding Anjana, oh, you're Isabayo, Chokuka. And once in a while, हाँ पर हिसाब आया, अकाउंट सेटल करो ऐसा बताया, अकाउंट सेटल हुआ कब बोल सकते हैं? you can. ठीक है, जब आप रोल एग्जैक्टली प्ले करेंगे तभी। Right. So that Pragna Shakti talking, not Shuddhatma. तो प्रज्ञा शक्ति बात करती है, आत्मा की शक्ति नहीं है बोलने की। वो प्रज्ञा शक्ति भी क्या है? तो कि आत्मा की कोऑपरेटिव शक्ति है, तो आत्मा नहीं है वो भी। Right. लेकिन उसका रोल कहाँ तक है? कि जैसे मान लो कि आप स्पॉट पे खड़े हैं, तो शिप में जाना है तो कैसे जाएंगे? इतना स्टेयरकेस लगानी पड़ती है। तो वैसे यहाँ क्या था कि मैं मिनस हूं, ये बांध था पहले, कि मैं शुद्धात्मा में बांध हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से वो अनुभव रहता नहीं है ना। क्योंकि वो आप भी कि मैं शुद्धात्मा, वो भी कैसी स्थिति है? अवलंबन वाली, डिपेंडेंसी है, भी शब्द से अवलंबन है, निरालंब दशा नहीं है। लेकिन मतलब पॉट पर से अभी शिप में गए नहीं है, पहुंचे नहीं है, अभी तो सीढ़ी पर
चढ़ के जा रहे हैं, तो सीढ़ी पर चढ़ के जो जा रहे हैं वो जो रोल है वो प्रज्ञा शक्ति का रोल है, और एक बार सीट में चढ़ गया फिर सीढ़ी की जरूरत है नहीं है। તો એવું દરદ એવું જ થાય કે એમને કીધું ને આમ મને તો એવું લાગે કે હું તો જ્ઞાનમાં જ રહું છું, પણ કશું કહેવાય તો આમ ટીટ ફોર ટેટ એવું જ થાય કે ભાઈ મેં આણે મારી સાથે આવું કર્યું ને તો હું તો આવું જ કરીશ એમ, એટલે આપણા મગજમાં તો હોય જ કે નેક્સ્ટ ટાઈમ કેવી રીતે બિહેવ કરવાનું છે. अब ऐसा क्यों होता है, टिट फॉर टैट कर ऐसा विचार क्यों आया कि भाई आप ज्ञान से चल रहे हैं कि आपकी बुद्धि के आधार पे चल रहे हैं? પણ એ તો टिट સવારમાં फॉर પ્રાર્થના टिट फॉर કરીને- टैट करना कौन सिखाता है? ના એ બુદ્ધિ શીખવાડે. हाँ, अनंत अवतार से बुद्धि का सुन के मार खाते रहे। ના, એટલે હું આયુષી ને એવું શીખવાડું, એક કોક વાર આવે ને કશું થયું હોય ને તો કે આપણે એવું ના કરાય કે આમ ના કરાય, પણ પછી મારે હું જોબ પર તો એવું જ થઈ જાય કે હારા બધા આવું જ કરે છે, આપણે તો આવું જ કરવું જોઈએ એમ. પણ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ Yeah. આપણને કોઈ બેડ એક્સપિરિયન્સ કોઈકની સાથે થયો હોય તો એનો મતલબ એવો તો નથી ને કે તમે યુ કીપ ઓન બીંગ કાઇન્ડ એન્ડ બધું જેમ તમે હમણાં સુધી નોર્મલ એમની સાથે રહ્યા છો એવી રીતે કન્ટિન્યુ કરવાની જરૂર તો નથી ને. જો તમે એમને સામે ટીટ ફોર ટેટ નથી આપી શકતા તો એવું નેસેસરી છે કે આપણે આપણો સ્વભાવ નથી છોડવાનો. यहाँ बात समझ लो पहले। આપણે ચલો આપણે यहाँ नहीं, यहाँ मतलब हम क्या करते हैं, हम पहले से डिजाइन कर रहे थे कोई व्यक्ति ऐसा करेगी तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे, वो ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे। એક્સપિરિયન્સ પછીનું છે પણ हाँ, પહેલેથી આપણે નથી नहीं, નક્કી वो કરતા. बराबर है, वो एक्सपीरियंस के बाद ही बात की बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस में से हमने तारण निकाला है, उधर कंक्लूजन निकाला है। अब એટલે આપણે ये जो વિચારીને एक्सपीरियंस है वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? आज मेरा गला दुखता है तो मैं बोलूंगा कि मेरा गला दुखता है, तो परमानेंट बात होगी कि टेम्पररी है? देखिए यहाँ भी क्या कि यहाँ जो भी संजोग आते हैं वो संजोग कैसे है कि एवर चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, एक का एक संयोग काम के लिए तो रहता ही नहीं है। But there you have the chance to do સંભાવ, because અંદર કશુંક થયું હશે એટલે ઊભું થયું, એટલે ઘરે જઈને नहीं, પછીથી यहाँ बात क्या करने के लिए, यहाँ प्रॉब्लम क्यों आता है ऐसा कि भाई हमने जो जिस लोगों ने ज्ञान लिया है महात्माओं के लिए बात कैसी है आयुषी, ठीक है, हमारा निश्चय क्या होना चाहिए? तो दादा ये सब फाइल है, ये फाइल का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दो, ऐसा हमारा फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, ये डिसीजन है तो बाद में व्यवस्थित शक्ति आपको उस हिसाब से संजोग मिला के देगी। अभी उधर कोई नक्की करना कि मुझे ये बोलना है कि ये नहीं बोलना है, वो बात ही नहीं आती है। भाई मान लो कि जो भी व्यवहार हो गया, आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख हो भी गया, तो क्या करने का? आयुषी को बोलना है कि भाई इसका भी प्रतिक्रमण करो। પણ તમે સાચા હોય તો તમે પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે કરો? એની વાત અમુક વાર તો એ બી બરાબર જ હોય છે કે ભાઈ આ એ કે હું તો બરાબર જ છું, મારા વ્યવહાર બરાબર જ આવું છું, પણ સામે આજુબાજુ વાળા બરાબર ડ્રાઈવ ના કરતા હોય તો શું કરવાનું? यहाँ बात ही समझने की है कि अगर हम सही है तो सबको स्वीकार होना ही चाहिए ना। એ તો આપણને બી ખબર છે કે નથી સ્વીકાર કરી શકતા બધા, લાઈક આપણે સાચા હોઈએ તો પણ નથી કરી શકતા, પણ વાત એ નથી, વાત જુદી છે. ભાઈ બીજો ટ્રક લઈને આવે તો શું કરે તું? હે? ભાઈ બીજો ટ્રક લઈને આવે તો કશું ના થાય. અડી જવું પડે. આ તો નથી જોતું. इसलिए मैंने बताया कि ये ના, પણ यहाँ સવાલ क्या એ છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે આપણો સ્વભાવ સીધી વસ્તુ છે, જેમ કે હવે કોઈ મને આઈને લાફો મારી ગયું હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું મારો ગાલ લઈને એની પાસે નથી જ જવાની. तो थोड़ा दूर उभा रहो। હા, તો દૂર ઉભું રહેવાનું, પણ એ જે આપણે ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ આપણી માટે ઓકે છે ને? સવાલ એ છે. हम क्या मानते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या होना चाहिए कि भाई मुझे सब फाइलों का संभव से निपटारा करना है, जिससे ये होना चाहिए। અંદર આપણને ખબર છે, એવું નથી કે નથી ખબર, આપણને અંદરથી ખબર છે, પણ બીજી વાર આપણે ચેતવીને તો રહેવું પડે ને એમ. और उधर जागृत रहने की छूट है। હા, બસ એ એટલું જ હતું કે આપણે જાગૃત રહેવાનું. मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, स्नेक घर में आ रहा है तो क्या करेंगे आप?
बोलेंगे आइए आइए आपका ही घर है, आओ आओ। तो फिर ऐसा पैर भी सामने का भाई आए ना काट के जा हिसाब है, तो ऐसा बोलते हैं। ना। तो लकड़ी से उठा के दूर भी फेंकते हैं, क्यों? तो क्या हम विरोधी हो गए उसके? दूर हटाया उसका दिया नहीं कि हम विरोधी हो गए। तो यहाँ जहां जो व्यवहार करने का है वो व्यवहार करना पड़ता है। कैसे? विदाउट ओपिनियन एंड प्रेजुडिस। નિલેશભાઈ, हाँ, જ્યાં સુધી એ ફાઇલની ટાંકી ખાલી ના થાય ત્યાં તો ધીમે રહીને થપ્પડ ખાવી જ પડે, પછી સંભવ નીકળી જાય. અનંત You અવતાર can से stay away from the snake. तारण निकाला। હવે દાદા છે આપણી પાસે. अब अभी આપણે- भी now we have the tools. अब अभी भी मार खाने के संजोग आता है सामने, तो बार बार मार खानी क्यों पड़ती है? तो तारण निकालते जाएंगे तो मार खाना कम होगा। व्यवहार में जो जो अनुभव होता है तारण निकालते कि नहीं निकालते? एक बार टिकट आ गई तो तारण निकलता कि नहीं निकलता? तो हमने कहाँ गलती की, अभी दूसरी बार जागृत हो जाओ, अभी दूसरी बार टिकट नहीं आनी चाहिए। बोलने के लिए आना पड़ता है किसी को। પણ એમાં જાગૃતિ આવી જાય પણ માણસોની જોડે વ્યવહારમાં નથી तो આવતી. मैं बात वही समझा रहा हूँ कि उधर परिणाम दिखता है हमें कि भाई गलती की इसलिए टिकट आई है। वैसे यहाँ भी मार खाने का संजोग क्यों आता है कि गलती की इसलिए मार खा रहा है? तो गलती क्या की? कि आपने सामने वाली व्यक्ति को कर्ता के रूप में देख लिया, वो जानबूझ के कर रहा है ऐसा हमें लगता है, इसके कारण मार खानी पड़ती है। कि जो वास्तविकता वो हमें समझ में नहीं आ रही है ना, वो वास्तविकता वो समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तो कि हाँ ऐसा नहीं बोलो कि भाई ऐसा ही करना है कि ऐसा नहीं करना, उसमें दो में से एक में भी जाने की जरूरत है। कौन सा व्यवहार हमें शोभा देगा इतना देखने का है। मान लो कि बच्चा है, बराबर है, अभी प्लग में जाके उंगली डालता है बार बार, तो क्या करने का? બંધ કરી દો. दो चाटे लगा देंगे ना पहले, अभी यहाँ तो चाटे भी नहीं लगा सकते। Now here you put the plug protector. Yes, that's what I was talking about. Yeah. Means आप क्या करेंगे तो उधर फिर वो पिन बंद कर देंगे मेरा। तो यहाँ तो पिन भी बहुत पतली आती है, उंगली जाएगी नहीं। इंडिया जैसा बड़ा प्लग नहीं होता है। उधर क्या करेंगे? फिर अनुभव करना दो एक बार। मैंने भी पेंसिल डाली थी प्लग में और करंट का अनुभव किया था। एक बार अनुभव करा, फिर दूसरी बार करेंगे नहीं ना। पर कब नहीं करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे तो ये मेरी गलती हुई, इसके कारण वो ग्रेफाइट को उंगली टच की, इससे करंट लगा। वो लकड़ा पकड़ के, पेंसिल की लकड़ी पकड़ के डालते थे तो अनुभव होता ना? नहीं होता। वो ज्ञान हो गया ना, वो कंक्लूजन निकला, तब दूसरी बार गलती नहीं करेंगे ना। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दिया जलता है, जा काटने लगा क्या था, एक बार हाथ लग गया, जल गया, फिर किसी को बोलने के लिए जाना पड़ता है, अभी उधर जाना मत, हाथ मत लगाना, बोलना पड़ता? नहीं बोलना पड़ता, क्यों पड़ा? हाँ, उधर कैसे तारा निकल जाता, कंक्लूजन निकल जाता है ना। कोई छोटा फिर भी निकल जाए, हम अभी छोटे थोड़ा। Wait, but this is confusing because the conclusion that she came to is these people are treating me in this way. So I will adjust. I won't do that anymore. I don't like this person. I need to give a reaction. So you're encouraging her to do that. तो सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है, तो सामने वाले की समझ को हमें सही करने की, हमारी समझ सही करने की है। आपड़ी. मुझे कमाई कब होगी
कि जब मेरी समझ सही हो गई है तो मुझे कमाई होगी। એ તો કન્ક્લુઝન ના ગણાય પછી। तो कंक्लूजन कौन सा निकलना चाहिए? अनंत अवतार से दूसरों को बदलने का प्रयत्न करते करते आए। ના દૂસરો ને આપણી अपन दादा को एग्जाम्पल देते थे, शादी करते हैं ना तब से दो हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही बिजनेस में लग जाते हैं। कौन सा बिजनेस? हस्बैंड को होता है कि वाइफ को मैं मेरी डिजाइन के हिसाब से मोल्ड कर दूं, और वाइफ को होता है कि मेरी डिजाइन के हिसाब से हस्बैंड को मोल्ड कर दूं। वो टकराव करते करते घर में क्लेश कंकास करते करते 40, 50, 60 साल निकाल देते हैं। फिर भी दोनों से एक में भी बदलाव आता है। उमेश भाई, तो भाई हमें कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि भाई सामने वाले को बदलने का प्रयत्न करने का है कि भाई हमारी समझ सही कर लेनी है। हमारी समझ सही करनी। हाँ, तो सामने वाले तो अपने हिसाब से जो भी करना है करने की छूट है उसको। हम हमारा खुद का देख से मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो दूसरी तरह से बात समझो कि आप मासा को उनका स्वभाव बदलने जाएंगे तो बदलने वाला है। जो अपनी प्रकृति लेकर आए वो चेंज होने वाली है, आपकी चेंज होती है। तो यहाँ चेंज होते हो, दूसरे वाले सामने वाले हम बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं। समझा? इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये वास्तविकता भी साथ में समझने की है। जब में प्रयत्न होता है उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो भीतर ये समझने का कि मैं कितना भी प्रयत्न करूं दिवस में बदलाव आए कि नहीं आए, तो मुझे पकड़ के नहीं रखने का है। बोलने की छूट है, और फिर भी नहीं चेंज आता है तो मुझे छोड़ देने का। तो उसको नहीं है नहीं तो बोला कि भाई आपने बोला मैंने छोड़ दिया। तो था भैया भाईबंध तो आया नहीं ओ तो कैसे? हाँ कैसे बता? तो बता को बताओ भाई, बताओ सब। બધા જોબ કરે છે। તારો પ્રશ્ન છે, चलो, પૂછ લે। बात ख्याल में आई। वे सामने वाला गलत चल रहा है, हमें गलत चल પૂછી रहा है। લેજે કલાક થી બીજો કલાક જેટલું बात तो समझ नहीं પછી पड़ेगी। પૂછતા જ જો सामने वाला गलती करके टिकट ले रहा है तो हमें टिकट लेने की वो देखकर उधर कैसे हम सचेत जागृत हो जाते हैं कि नहीं हमें टिकट नहीं है। સેટિંગ 20 લેટર એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે એ વિચારવાનું કે આપણે ભાગ કેમ આવ્યું, वो બીજાને तो કેમ ના આવીને આપણે જાય। हम वो तो बात की बात हुई। एक्सीडेंट क्यों हुआ वो बोलेंगे, उसके पहले टालने का तो हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा। बाद में एक्सीडेंट हो गया तो बात अलग है। ठीक है, यहाँ तो हम एक्सीडेंट टालने का प्रयत्न भी क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब में जो होगा होगा, तो फिर होगा क्या? बात तो समझनी चाहिए, तो बात को यथार्थ रूप से समझने की है। क्योंकि यहाँ दादा मैंने जो बताया भाई कंप्लीट जागृति के साथ व्यवहार करने का है। तो जागृति कौन से थे कि मैंने सारा व्यवहार कर रहा हूं, मैं सुध जाता हूँ। वो समझ हाजिर रहेगी तब काम निकलेगा। એટલે ટિકિટના કિસ્સામાં માનાથી કહીએ ટિકિટમાં तो आगे તો ટિકિટ તો કોઈને લેવાની ગમતી ના હોય, मामी प्रमोशन ले लो, जॉब में तो મળે કે ના મળે। અને એના રિઝનિંગમાં પડીએ તો તેનો કોઈ અંત જ નહીં। ગમે એટલા રિઝનિંગમાં પડો આવું કરવાનું, આવું નતું કર્યું, આવું કર્યું તો આવું થવાનું હતું। तो उधर बुद्धि के हिसाब से चलते हैं ना।
बुद्धि के हिसाब से चलते हो गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो बुद्धि आपको इमोशनल करके आपको मार खिला रही है, वो तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब में है तो सांप काटेगा, ऐसा करके घर में आने देते। પ્રિકોશન તો બધા લેવાના, પણ પ્રિકોશન ની પછી પણ હજુ સંતોષ નથી થતો ને, પ્રોબ્લેમ આપણે એ હોય છે પ્રિકોશન। संतोष क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम हमारी डिजाइन पकड़ के बैठते हैं ना। अगर मेरी डिजाइन मैं पकड़ के नहीं बैठा हूं तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ आएगा? हम आंसर लेके जाते हैं कि क्वेश्चन लेकर जाते हैं? आंसर लेके जाते हैं। हम तो हमारा आंसर टैली करने जाते हैं। પહેલેથી ખબર જ હોય કે આવું કરત આવું કરવાનું જ છે, પછી હું થવાનું તા તમારું આગળ। हाँ भाई बराबर है, तो सबको ऐसा नहीं हम ज्ञानी है ऐसा ही सबको लगता है। किसी को ऐसा थोड़ा कि मैं अज्ञानी हूँ या मेरा ज्ञान गलत है, ऐसा तो किसी को लगता ही नहीं है। मेरी समझ गलत है ऐसा लगे, समझ में आ गया तो टकराव होगा ही नहीं, 10 वखत तो દાખલો पकड़ ગણીએ, रहेगी नहीं ना। 10 વખત દાખલો ગણીએ પણ એનો જવાબ સાથે મેચ નથી થતી પેલી રકમ, રાઈટ? એટલે પેલી રીત તો આપણે રીતની બધે લાઈન બાય લાઈન આપણે જાજા કરીએ તો પછી એનું તારણ એ જ કે આપણે ક્યાં આગળ ભૂલ છે। हाँ पहले यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाते मीन्स क्या होगा, आप एनालिसिस कर रहे हैं ना उसका, एनालाइज कर रहे हैं उसको कि कहाँ गलती होगी। फिर वो तो गलती होने के बाद करते हैं ना, वो गलती होने के बाद वो एनालाइज करके देखते तो आपकी गलती पकड़ में आती है ना कि कहाँ गलती होगी, और एक बार वो पकड़ में आया फिर दोबारा वो गलती करेंगे? आमतौर पर नहीं करते हैं। નહીં કર तो बहुत भारी हिसाब है तो फिर वो गलती करते रहेंगे। इतना सीधा सवाल तो हम नहीं है ना कि बार बार मार खाते ही रहे। एनिमल है ना, वो गलती कर सकता है। तो कुत्ता है ना, कुत्ते को तू करके रोटी दिखाएंगे ना, वो आएगा खाने के लिए, डंडा मारेंगे चला जाएगा, वापस तू करके बुलाएंगे वापस आएगा, फिर मारेंगे फिर चला जाएगा, फिर दोबारा बोले फिर भी आता ही रहेगा। हम तो एनिमल नहीं, हम तो ह्यूमन बीइंग है। हमारी समझ तो उनसे ज्यादा है ना कि कम है। तो ये बात इसको बोलेंगे भाई, ये बात समझो कि बार बार कितनी बार बोलने का आपको, कुछ तो उसकी लिमिट होनी चाहिए ना। फिर दूसरी तरह से बात समझो कि हाँ संसार में जो भी लोग हमें मिलते रहते हैं, जो भी सेवक सामने आते हैं, क्यों आते हैं? वो पीछे गूंज खड़ी करके आए थे, इससे वो संजोग सामने आ रहा है। अभी क्या करने का है? देखिए सही समझ के साथ वो गूंज खोलने की है, वो नॉट खोल देने की है। तो जहां नॉट खोलने की बात है उधर कोई टर्म्स कंडीशन होती है? अकाउंट सेटल करने का उसमें टर्म्स कंडीशन होती है? नहीं होती है। लेकिन उसी फिर भी क्या बताओगे, ड्रामेटिक रोल करो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा धमाल कर रहा है तो आग तो दिखानी पड़ेगी भाई, हिसाब में इसलिए कर रहा है, ऐसा करके छोड़ देने का। दादा को ने एक एग्जाम्पल दिया था, बच्चा छोटा है तो कील पे शर्ट लटका है और खड़ा होके जेब में से पैसा निकाल रहा है पापा के, क्या करने का? बोलेगा दे उसको, देख कितना अच्छा बड़ा पराक्रम किया। हम कैसी गलती करते हैं, दादा को दिखा रहे हैं। देखिए वो मदर क्या बोलेगी, वाइफ क्या बोलेगी हस्बैंड को, देखो कितना कितना अच्छा पराक्रम कर रहा है। तो लड़का क्या समझेगा
कि देखो मुझे कितना अप्रिशिएट करे, मैंने कितना अच्छा काम किया। आगे जाके क्या बनेगा? जेब कतरा। गलत चीज को हमने सपोर्ट किया ना, तो उसको मालूम नहीं कि एक चीज गलत है, तो उसको बातों समझ में आनी चाहिए ना। उधर एक चाटा लगा देंगे तो उसको ख्याल में आएगा भाई मैंने कुछ गलती किया, इससे मुझे मार खानी पड़ी, 2-4 ठोकनी पड़ेगी। सीधी बात है। तो क्या उसको मारने के लिए हम कर रहे थे कि नहीं? उसको ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि ये चीज गलत है, अनुभव में आए कि ये चीज गलत है, इसलिए मुझे मार खाना पड़ा। इसका परिणाम क्या होने वाला है। देखिए यहाँ भी संसार में हम आंख कान खुले रख के चल रहे हैं, घूमते हैं, ये सब चीज सीखने की मिलती है। दादा भगवान ने क्या बताया? ये संसार में कितने प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग इतने अच्छे हैं कि मार खाते हैं भूल जाते हैं, मार खाते हैं भूल जाते हैं, मार खाते हैं भूल जाते हैं, बहुत अच्छा है। मार खाने भूलिए तो हालत क्या है? કશું યાદ ના રહે તો સારું જ કહેવાય ને. જેને માર્યું એને તો સારું જ લાગે. मारी ना हारू लगे, खाधो ना हारू ना लगे, तो फिर वो तारण रहेगा तो मार खाना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं? मार खाते और फिर अपनी गलती में तो सीख लेते ऐसा मार दूसरी बार मुझे नहीं खाना है। तो तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं? मार कोई और खा रहा है और उसमें से वो खुद उसमें से कंक्लूजन निकाल लेता है, लेसन लर्न कर लेता है। कोई ऐसे संजोग में अगर मैं आ जाऊं तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, तो बिना मार खाए वो तारण निकाल देता है। तो हमें देख लो हम कौन सी कैटेगरी में, मार खा के भूल जाते उस कैटेगरी में, कि मार खाने के बाद सीखते हैं, कि मार कोई और खा रहे हो उसमें से हम सीख लेते हैं। बात नहीं समझनी चाहिए। आप चल के जा रहे हैं बस स्टैंड पे, तो ब्लैक आइस हो गया तो बाहर से दिखेगा। तो फ्रेश आइस भी चल रहा है, फ्लरी चल रही है, तो पता चलेगा नीचे ब्लैक आइस है। तो जाते कैसे जाते, कितनी जागृति के साथ जाते हैं, क्योंकि अनुभव है, दूसरों का देखा है कि भाई थोड़ी तनिक भी गलती कर दी हमने, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, वो पैर फिसल गया, तो हमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो गलती से फिसल गया ना, जानबूझ के थोड़ा फिसल गया है, तो हमें तो कुछ होगा नहीं ना, नहीं होता है। कुछ नहीं होगा ना, गलती से पैर फिसल गया तो ब्लैक आइस में हमें कुछ होगा नहीं, आइस गिरेगी नहीं, आइस ब्रेक हो जाएगी, हम थोड़े ब्रेक हो जाएंगे। अनुभव पक्का है सबको, गलती करते हो तो मम्मी को बोलने के लिए आना पड़ता है कि बेटा ऐसी गलती मत करना, ये बात समझने की है। एक बार कंक्लूजन निकल गया तो दोबारा गलती नहीं करते। तो वैसे यहाँ भी संसार में जो जो संजोग में सब पसार होते हैं, वहां ये तारण तो निकलना चाहिए ना, और ये कंक्लूजन निकालते जाते हैं हम, तो दोबारा वो उधर वो गलती करने से पहले भीतर ब्रेक लगेगी आपको। इसका तो नहीं कि नहीं बोलने का किसी को, ड्रामेटिक व्यवहार करने की छूट है। लेकिन ये अक्रम में जब आए तब ये पता चला, पहले तो ड्रामेटिक जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अब अभी तो तो पता चला, बच्चों को ऐसे ऐसे पीटते थे ना, जंगली की तरह पीटता है, बहुत बहुत कौन करना पड़ा फिर। तो पहले इंडिया में था ना, इससे चल गया, जो वो लोग भी मार खा रहे थे। नहीं, उनको तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, उनको तो मार खाना पड़ता, उनकी चॉइस ही नहीं। खिले के ગુજરાતી માં કેવા ખીલે બાંધેલી ગાય કેવાય, हाँ हाँ, છોકરાઓ છે વાઇફ છે બધા કેવા કહેવાય,
तो बंधी हुई गाय है, गले में डोरी बांध दी है, तो भाग के जाएगी कहाँ? जा सकती है? એટલે એટલા આખી કોઠીના કોઠી બની પ્રતિક્રમણ કરવાના બાકી રહ્યા છે. मतलब ચાલુ થયા પણ ये गलती एक बार रियलाइज हो गई तो अभी उसका पक्ष नहीं लेंगे ना, तो पक्ष लेना बंद हो गया, गलती से बाहर निकलना शुरू हो गया ना, तो शुरुआत हो गई तो एंड आएगा ना. तो पहले तो गलती रियलाइज ही नहीं होती तो एंड आएगा कहाँ से? बोलो बोलो, ठीक कहता था. हाँ बोलो. મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમે જેમ કીધું ઇન્ડિયામાં હતા માર ખાધું મારે આ ચાલી અહીંયા નથી ચાલતું માનવ સેમ છે જગ્યા અલગ છે તો ઇન્ડિયામાં શું કામ ચાલે ને અહીંયા શું કામ ન ચાલે ઇન્ડિયામાં કેમ ચાલવું જોઈએ क्या इंडिया में आप किसी को मारेंगे तो पुलिस आके पकड़ेगी नहीं आपको. બરાબર છે यहाँ तो मालूम है कि भाई वो बच्चा फोन कर देगा ना तो अंदर डाल देंगे. પણ એ વસ્તુ ખોટી છે अब अभी उधर क्या है कि उधर जिस तरह से देखते आए हैं, तो क्या लगता है मानने में कोई गलती है ही नहीं ना, तो गलत व्यवहार ऐसा समझ में कहाँ आ रहा है. પણ तो એ स्कूल में भी टीचर पिटाई नहीं करते, हाँ. और जब पिटाई करते तब ध्यान में रहता है कि भाई प्यार से मारने के धीरे से मारना ऐसा रहता है. वो तो बराबर प्रसारित दे ही देते हैं, और फिर वो सामने केस भी होगा ना. देखिए हाँ, बात क्या है कि भाई आज मुझे मारना पड़ता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अब कब मारेंगे किसी को भी? કોઈ નહીં સુનેગા તો सामने वाला खुद कर रहा है, ऐसा हमें लगता है. मैंने किसी ने कुछ गलत किया तो नहीं मारेंगे सामने वाला खुद गलती कर रहा है, ऐसा हमें लगता है. हमारे लिए वो गलती है सामने वाले के लिए वो गलती नहीं है अब उसके व्यू पॉइंट से वो गलत नहीं वो करना, गलत नहीं है तो दोनों के व्यू पॉइंट का टकराव है ना उधर. ठीक, हमें ये समझ में आए कि बच्चे छोटा है अभी, उसकी जो समझ है उसके आधार पे ये कर रहा है, बड़ा होने के बाद वही बात करने वाला है. जी आज आपको कोई बोलेगा पढ़ाई करने जाओ, नहीं और छोटे से तब क्या हालत थी? हाँ. तो पेरेंट्स बोलते ही रहते भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. तो बोलेंगे पापा को कि जाओ पढ़ाई करो. अभी तो रोकना पड़ता है कि रिटायर हो जाओ. हाँ, तो संजोग आते हैं. बोलो, आपको लगता है मैं पढ़ाई करूँ, तो बच्चे बोलते हैं नहीं बस पढ़ाई मत करो, रिटायर हो जाओ. तो पुण्य है ना आपकी, पुण्य ना क्या है? तो फिर भी क्या है कि हमारी डिजाइन ही हमें परेशान करती है, और कोई परेशान नहीं करता है. कोई व्यक्ति कोई संजोग हमें परेशान नहीं करता है. हमारी खुद की जो डिजाइन है वो डिजाइन ही हमें परेशान करती है, दुख देती है. तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए उसको रिएक्ट नहीं करना तो चाहिए इग्नोर करने का, रिएक्ट नहीं करने का ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या बता रहा हूँ नहीं कि- बेस्ट वे क्या है इसका कि बदलाव किस में लाने का है, सामने वाले में कि हमारे इसके भीतर. जो कर रहा है वो नहीं जो देख रहा है उसमें बताना चाहिए मतलब बदलाव तो इसी में इसमें लाने का है. हाँ सामने वाले में बदलाव लाएंगे तब आएगा, कि इसमें बदलाव आएगा तो सामने वाले में आ जाएगा. ये कैसा एक हाथ से ताली गिरती है, मैं हाथ कैसा भी मारो ताली गिरेगी, तो सामने दूसरा हाथ आएगा ताली गिरेगी. तो वैसे यार मैं मेरी गलती समझ के उसको रिपेयर करने का प्रयत्न शुरू कर दूंगा, तो सामने वाले के रिएक्शन आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे. तो प्रॉब्लम सामने वाले में कि प्रॉब्लम इधर है? इधर ही है। देखिए हाँ, समझ में आएगा प्रॉब्लम तो इधर है, सामने वाले में नहीं है. दिवस तो अच्छा ही है, गलती मेरे में ऐसा ख्याल में आ जाए तो झगड़ा होगा ही नहीं, होता भी नहीं. तो श्लोक बैठो ऐसा बोला नहीं. हाँ, श्लोक ना गाते.
तो क्या बात है समझने की, तो क्या बदलाव इसमें कब आएगा? देखिए ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चारों है उनके साथ बातचीत कर करके, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे इसके साथ भी बात करनी पड़ती है कि आपको लगता है सामने वाले ने किया, तो आप मुझे समझाओ उसने किया, आप बोल रहे कैसे किया बताओ। एक और आप बोलते हुए किसी की कुछ भी करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तो स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो फिर वो क्या, अगर वो खुद कर रहा है तो सबके साथ ऐसा करेगा, तो सबके साथ ऐसा व्यवहार होता ही नहीं है। तो क्या व्यवहार होता है कि जहां हिसाब है उधर ही व्यवहार हो रहा है, तो उधर क्या करने का? ठीक है, उधर मुझे मेरी गलती समझ में आएगी और मेरी पकड़ छूट जाएगी, तो मैंने हाथ सामने देना बंद कर दिया, तो सामने हाथ देना बंद कर दिया, ताली गिरेगी नहीं। लेकिन सब सिचुएशन में ऐसा करना ये समझने का है, ये समझने का पहले। समझ गए, फिर इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे? हाँ पर सब एक बार देखो, मैं आपको पॉइजन दूं हाँ। तो बोलूं कि तो अमृत है पी लो, हाँ। पिएंगे? हाँ, मुझे तो पता है अमृत है, मुझे पता नहीं है पॉइजन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको पॉइजन दूं और बोलूं कि अमृत है तो आप पी लेंगे? कि जैसे नाक के नजदीक जाएगा ना, कुछ स्मेल अजीब सी लगेगी, क्या बोलेंगे? अगर कोई डाउट हो तो कुछ नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे कि अभी तो खाना खा के आए, पेट भरा हुआ है, जी। एक काम करो अभी छोड़ दो, बाद में जगह होगी बाद में पी लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? तो वो तो परिणाम दिखाई देता है। इसका क्या हुआ, एक जगह परिणाम दिखाई देता है, इसके मतलब क्या हुआ? तो हम हर जगह उसका परिणाम देख सकते हैं। जहां परिणाम दिखेगा तो किसी को ब्रेक लगाने के लिए आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ब्रेक लगाओ, तो भीतर से ब्रेक लग जाएगी। कोई एक्शन का रिएक्शन पता चल गया तो उसके पहले स्टॉप हो जाएगा। मतलब मीन्स उधर आपको परिणाम दिखा है, एक्शन रिएक्शन की बात है, रिजल्ट की बात है। हाँ। तो रिजल्ट मुझे दिख गया कि भाई मैं ये जो करना चाहूँ इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, वो रिजल्ट मुझे स्वीकार्य है कि नहीं, ऐसा भीतर पहले चलेगा ना। तो स्वीकार्य नहीं है तो भीतर से ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी, इतना ही समझने का। इससे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया ना, भी आप आपके राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, सामने वाला रॉन्ग साइड पे आ रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है, हम क्या करते हैं? हमारी गाड़ी रोड के नीचे उतार देंगे, गाड़ी को कुछ भी होगा, नुकसान होगा, वो चलेगा, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी को बोलने के लिए आना पड़ता है, घर वालों सबको बोलने के लिए आना पड़ता है कि भाई नीचे उतार दो, कुछ सोचो मत दूसरा गाड़ी का। दूसरी तरह से समझो, ब्लैक आइस में गाड़ी लेके गए, कंट्रोल आपका रहता है, कितना भी ध्यान से चलाएंगे फिर भी ऐसी कोई जगह आ गई, आपकी इच्छा है कि एक्सीडेंट करना है, फिर भी कंट्रोल होता है। पर पड़ता है, मतलब कितनी सारी गाड़ियां वो गलती करती है, तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो क्या एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर गलती करना बंद कर देंगे, तो उधर आप जागृत हो जाएंगे। इसलिए यार अंतस्करण के साथ बातचीत करके वो बात उसको फिट करानी पड़ती है, सभी ओर से, चारों ओर से। मैं पिछली बार भी सत्संग में आई थी, मैंने सिमिलर सुना था, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। तो मैं नहीं आया था पिछली बार, मैं अच्छा था। आपने बोला पिछली बार, इससे मैंने सॉरी आप नहीं, लेकिन मैं पिछली बार सत्संग में नहीं वो मैं वहां समझ से कुछ तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट्स में लेके गई थी और मैंने इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, जैसे आपने बताया राइट कि ऐसा करना वैसा नहीं। अब हर गुजराती में हर डगले ने मगले तनायो करो पर्सन, तो हर बार तुम ऐसा कितने कितने लोगों के साथ दिन में हम लोग कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट? हमें पता है ये बोलने के बाद ये होगा तभी रुक जाना। सो हम ही अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा। सो लाइक सब अच्छे और हम ही बुरे,
राइट, लाइक हमें सब ध्यान देना है, ऐसा कितनी એટલે यहाँ बात समझ लो, सबसे पहली बात ये समझ लो कि भाई हमें हमारा खुद का सही करने का कि सामने वालों को सही करने की मेहनत करनी है। सबका अच्छा होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद का मतलब पहले हम खुद सही हो जाएंगे तो बाकी सब सही लगेंगे ना। हाँ जी। तो मैंने ग्लासेस पहने हैं, वो जिस कलर का ऐसा ही सारी दुनिया दिखेगी ना। बात ख्याल में रखना। अभी मैं बोलूं कि मुझे सब पीला दिखता है तो अंजामन मानेगी? बात मानेंगे आप तो वो बोलेंगे कि आपके ग्लास येलो है इसलिए आपको सारी दुनिया येलो दिखती है। પેલા અંજનાની ચેક કરશે કે वो ભૂલ અંજનાની કઈ બાજુ થઈ ગયા, અંજનાની નો એમની છે। अभी वो तो डॉक्टर साहब है, उसको तो सीधा पता चल ये कलर ग्लास है इसलिए ऐसी दुनिया दिखती है। तो मुझे ऐसा ख्याल में नहीं आता कि भाई कलरिंग ग्लास के हिसाब से दुनिया ऐसी दिखती है। तो मुझे क्या लगेगा गलती सब सामने वालों की है और कमी की तो रहते कि यार मेरे चश्मे में गलती है। ये चश्मा वो क्या होता है कि आपकी खुद जो पिछली समझ है, पिछली जो डिजाइन है वो डिजाइन गलत है। वो डिजाइन के हिसाब से हम सामने वाले कर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। इससे फिर होता है टिट फॉर टैट करो, तो टिट फॉर टैट नहीं करेंगे तो सब हमारे पर हावी हो जाएंगे, हमारा मिसयूज करेंगे। तो यहाँ बात क्या है कि यहाँ ये बात समझ में आए कि भाई मेरा चश्मा है वो गलत है तो मैं चश्मा निकाल दूंगा, फिर प्रॉब्लम रहेगा, फिर जैसा वैसा ही दिखेगा। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि हम हमारे ज्ञान में देखकर हमारे अनुभव से बोलेंगे संसार में कोई जीव दोषी नहीं है, कि संसार में कोई जीव दोषी नहीं है। तो गुजराती तो શું है दोषी सर ने बोला दोषी वाला नहीं होया, बीजा છે દેસાઈ છે। हाँ But that includes file 1. File 1 is also you have to see Nirdosha. File 1 is also Nirdosha supposed to be. मतलब क्या बात, ये जगत में कोई जीव दोषी नहीं है, That's right. तो कोई जीव में सब आ गया ना। It includes file 1. It's तो easy गलती to forget about. पर अभी उसके पीछे का साइंस से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ठीक है, वो जो कर रही है वो नया बीज है कि कर्म का पिछले कर्मों का फल आ रहा है। जहां बीज बो रहे वहां हम स्वतंत्र है, तो बीज कैसा बोए। Wait, જ્ઞાન પછી નવી બીજ મુકાય ના મુકાય, right? ज्ञान के बाद की बात नहीं, ये जनरल बात है। Confusion થાય છે. तो मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ हम बीज को चेंज कर सकते हैं, फल को बदल नहीं सकते। तो सारा संसार क्या करता है, फल को बदलने की मेहनत करता है। जो हमारी सत्ता में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, वो परिणाम को बदलने का कितना भी प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, दीक्षित बस चेंज आएगा? नहीं आएगा। हमारी मेहनत उधर फलदायी होगी? नहीं होगी। तो क्या ये दूसरी तरह से बताते ગુજરાતીમાં શું કોઈ દાદા है कि આપણે दरेलाने दरिए से चक्की पे आटा पीसा के आए और दोबारा वही आटा पीसने के लिए जाके रख के आए, ऐसी गलती करते हैं? कोई करेगा? आप लोग तो नहीं करेंगे। तो भाई लोग कैसे होते हैं, ख्याल में नहीं है तो वो डिब्बा वापिस रख के आएंगे पिसाने के लिए। घंटी वाला भी बहुत सहज होता है, सरल होता है ना, वो क्या करेगा, तो सिवा भी पैसा ले लेगा पीसने का। हो गया आपका, पिसाई हो गई अच्छी तरह से। हाँ, और वापिस वजन भी काट लेगा। हाँ, 500 ग्राम उसमें से घाटा निकाल दिया है और 10 रुपया देना है। बात कहाँ आ रही है?
तो कैसे मार खा रहे हैं। देखिए हाँ, हमें ख्याल में आ जाए कि ये जो भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रही है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता से नहीं कर रही है, उसको फर्जियात करना पड़ता है, कंपल्सरी करना पड़ता है। अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस वन हैज टू कंपल्सरी डू इट, और कंपल्सरी करना पड़ता है इसलिए वो जीव दोषी नहीं है। अपनी मर्जी से कर रहा है तो स्वतंत्रता है उधर। तो स्वतंत्रता किधर रहती है कि आप किस प्रकार का बीज बोना चाहते हैं, सामने वाले को सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं, उधर आपकी स्वतंत्रता है। अभी जो फल है तो फल में तो किसी का दोष देखने का ही नहीं है। क्यों होता है कि वो फल के टाइम वो स्वतंत्र है ही नहीं, उसके हाथ में है ही नहीं कि ये करो या नहीं करो, हाथ में है ही नहीं। हाथ में है ही नहीं तो उसका दोष कैसे देख सकते हैं। मान लो कि आपने खाना पका है, पूछ ले रही ना जाए, और मिर्ची और नमक ज्यादा गिर गया तो गलती आपकी है कि खाने वाले की पुण्य की अच्छी पड़ी, वो प्रॉब्लम है। तो जानबूझ के डालते हैं तो रोज डालेंगे ना, सीधी बात है। अगर जानबूझ के डालते हैं, प्रकृति में है ऐसा, तो रोज खाने में नमक मिर्ची ज्यादा ही डालते रहेंगे। वो रोज तो ऐसा करते ही नहीं है, तो कभी अनजाने में हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं। तो फिर भी सामने वाला कैसे ट्रीट करेगा, जानबूझ के कर रहे ऐसे ही करेगा। सामने वाले को समझ नहीं है तो उधर उसको ऐसे लगेगा आज जानबूझ के किया है ऐसा। ठीक है यार, मेरी समझ सही होगी तो मेरे लिए सारी दुनिया अच्छी है। तो मेरी समझ जहां तक सही नहीं हुई है वहां तक मेरे कलरिंग क्लासेस से मैं देखता रहूंगा, तो फायदा होगा क्या। दूसरी तरह से बात समझो, जो दिखाई देता है उसको हम सही मानते हैं, वो परमानेंट ऐसा ही मानते हैं, फिर टेम्पररी ऐसा लगता है। आप यहाँ आके बैठे हैं, अभी वापस जाएंगे नहीं ना। जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हमें ख्याल में आता है कि यहाँ आए, टाइम पूरा होगा, सत्संग पूरा हो जाएगा तो प्रसादी लेके जाएंगे हम। वैसे जब बाहर व्यवहार करते हैं तब हमें ये बात ख्याल में रहती है, वे संयोग इकट्ठा हुआ है और बिखरने वाला है दोबारा, वो ख्याल में नहीं रहता है, धीरज बनी नहीं रहती है उधर। जो भी संयोग आते हैं तो उसका संयोग का स्वभाव कैसा है, तो कि इकट्ठा होता है संयोग और बिखर जाता है, इकट्ठा होता है बिखर जाता है। और हमें क्या लगता है तो संयोग कायम का है, जाता है टल ही निकल ही नहीं रहा है। इससे दादा ने एग्जाम्पल नहीं दिया, दादा भगवान ने। जगत की आदत कैसी है, हम क्या बोलते हैं, बुखार आया, बराबर है। तो दादा भगवान क्या बोलते, बुखार आया है कि जा रहा है। खाली समझ का ही बदलाव है ना, अंतर समझ का ही है ना। सही मायने में क्या है, तो बुखार आने के जो कारण थे वो हमने पहले उसके बीज बोए हैं। आज तो फल स्वरूप वो बुखार आया है, तो बुखार बाहर निकल रहा है, जा रहा है। तो जो जा रहा है उसको लटकनी सलाम करने के लिए खाली सैल्यूट करके आगे बढ़ने का कि उधर स्टकअप हो जाने का, इतना ही समझने का।
हॉस्पिटल में ऐसा नहीं बोलने का, ये तो आपका हिसाब है, भोगो। और फिर मैनेजमेंट भी बोलेगी आपका हिसाब है, भोगो, जाओ घर पे रहो। उधर हमें ट्रीटमेंट देने की, जो दवाई देने की, वो सब करने की छूट है। भीतर समझ रहे भाई इसका भोगने का हिसाब है, तो भोगने का हिसाब ऐसा आपको ख्याल में रहेगा, आप इमोशनल नहीं हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इमोशनल होकर ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, आप भी बीमार हो जाएंगे, सीधी बात है। घर में किसी की हेल्थ खराब हुई है, तो कभी सुना कि डॉक्टर अपने फैमिली के ऑपरेशन खुद करता है कि नहीं करता? क्यों, एक्सपर्ट डॉक्टर तो करेगा, नहीं करेगा। और क्यों नहीं करता? उसको भय लगता है कि कुछ गलती हो गई तो लोग मुझे बोलेंगे तो मेरी प्रेस्टीज क्या हो जाएगी, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता है। तो उसको अपनी एक्सपर्टाइज में शंका खड़ी होती है, इससे दूसरों को बुलाता है, तो दूसरे के पास भेजेगा, तो भय है उधर। तो भय के कारण इमोशनल बड़ा खड़ा हो जाता है, इसलिए गलती नहीं करने की वो जगह भी गलती कर देगा फिर, और इसलिए वो दूसरे को बुलाएगा कि मैं गलती नहीं कर दूं। बात समझ में आई? देखो ना, हम लोग कल आने वाले थे, तो आज जाते हुए अर्ली मॉर्निंग आने वाली फ्लाइट, तो सैन फ्रांसिस्को निकले, उसके पहले ही पता चल गया था कि फ्लाइट डिले हो रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट निकल जाने वाली है। तो क्या करने का, एयरलाइन पे चिल्लाने से कुछ होने वाला था? कौन सुनेगा उधर? वो बोलेंगे भाई अभी हमारे पास अभी आगे की फ्लाइट का कोई मैसेज नहीं है, वो उधर जाके आपको पता चलेगा। क्या करने का? रास्ता पता चल गया, फ्लाइट बोर्ड किया तब सब पता चल गया, कनेक्टिंग फ्लाइट तो निकल ही जाने वाली है। तो उधर उसका स्वीकार करेंगे तो मन शांत रहेगा, कि भीतर चिल्लाते रहे एयरलाइन वाला ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उससे सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। तो वैंकूवर में रहने का हिसाब था ना, तो जिधर हिसाब था उधर ही रहेंगे। एक होटल 10 किलोमीटर दूर थी एयरपोर्ट से, और दूसरी 38 किलोमीटर दूर थी, तो कहाँ जाएंगे? दूर वाले में जाएंगे ना, तो घूमने का ज्यादा मिलेगा। ऐसा करते हो? हम तो देखेंगे भाई वो वापिस आने के लिए उतना टाइम ज्यादा लगेगा, और सुबह की फ्लाइट है तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले ना वाले वेदा, तो ट्रांसपोर्टेशन तो मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कि फिर भी तो ध्यान में रहता है भैया दूर जाएंगे तो इतना टाइम ज्यादा लगेगा, तो उतना जल्दी निकलना भी पड़ेगा। तो वो सब व्यवहार से देखते कि नहीं देखते? और दूसरा क्या है, हाँ एक में ठीक है, वो संजोग का स्वीकार कर लिया आपने, तो आपको शांति रहेगी। और नहीं किया तो क्या होगा, सारी रात भी परेशानी हो जाएगी। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जैसे आपने बोला ये आइडियोलॉजी की ये फिलोसॉफी के हिसाब से जिंदगी में जो भी होता है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हिसाब का ऐसा मैंने क्या बोला? हिसाब है इसलिए हो रहा है। नहीं, मैंने क्या बताया कि अभी बात समझो, तो जो एग्जाम्पल दिया एक्सीडेंट वाला, तो क्या बताया कि भाई कंप्लीट जागृति के साथ व्यवहार करने का है,
तो गाड़ी सब कंप्लीट जागृति के साथ, कंप्लीट अलर्टनेस के साथ चलाने की है। हर संभव कोशिश एक्सीडेंट टालने की एंड तक करने की है। वो सारे प्रयत्न करने के पश्चात एक्सीडेंट हो गया, तब समझने का मेरा ऐसा हिसाब था, पहले से नहीं। तो पहले से मान के करेंगे तो आपके प्रयत्न होंगे ही नहीं। बात करना है, मान लो कि आपके बच्चे पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, तब मानते हैं तो उसका हिसाब ऐसे अभी पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे, क्यों? उधर भी बात तो ज्ञान तो ये फिट करने का, तो बच्चों को भी कितनी शांति रहेगी, नहीं शांति रहेगी, तो आपको भी शांति रहेगी। फिर भी ये समझ फिट करते हो उधर, नहीं करते हैं। ये करते कि जितना हो सके बेस्ट। क्यों नहीं करते? देखिए हम जानते हैं कि उधर व्यवहार में प्रयत्न करते रहेंगे, वो तो धीरे धीरे उसकी समझ बदलती जाएगी और पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा, फिर हमें बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ परिणाम क्या आने वाला है हमें मालूम नहीं, बीज कौन सा बोए हमें मालूम है, बीज कौन सा बोए हमें मालूम नहीं है। वो परिणाम आते हैं बाद में पता चलता है कि हमने किस प्रकार के बीज बोए थे। इंडिया में तभी पता था कि कनाडा में आने वाले, कौन लेके आया? व्यवस्था हर हिसाब लेके व्यवस्थित लेके बराबर है, लेकिन इंडिया में तभी तो पता ही नहीं था। तो इंडिया में भी कितने सिटी में घूमे थे? इंडिया में बहुत हम इस लिमिटेड ही ना, इतना दूर तो नहीं आया था ना, नहीं। ठीक है। उधर से आपको यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखी या कुछ संजोग ही लेकर आया ना आपको इधर। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इच्छा होती नहीं बाहर जाने की, फॉरेन में, फिर भी आना पड़ता है। कौन लेके आता है? संजोग लेकर आते हैं। तो मानेंगे क्या कि भाई ये लेकर आया, ये लेकर आया, मुझे तो जाना ही नहीं था, तो परेशानी किसको होगी? जो पकड़ के बैठे उसको परेशानी होगी, मुझे तो नहीं आना था, ये लेके आया। वैसे यहाँ भी क्या था कि बच्चे पढ़ाई में कच्चे हैं, तो उधर में ऐसा नहीं मतलब हिसाब है, उसको ढंग से पढ़ाई कराएंगे, जरूरत है ट्यूशन भी दिला देंगे या उसके साथ बैठ के पढ़ाएंगे भी। तो हर संभव प्रयत्न करते हैं उसी समझ को बदलने का। फिर बाद में जो रिजल्ट आता तब समझ देगा भाई हिसाब था ऐसा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम तो पहले डिजाइन बना दे में ऐसा होना ही चाहिए, फिर वो परिणाम आएगा कि वो नहीं देखते कैसे आ सकता है। सब पेरेंट्स को ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चे का पहला नंबर ही आना चाहिए। तो सब बच्चे की फर्स्ट रैंक लाने की कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेसिटी हो तो देखते ही नहीं है। तो सब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो सब पेरेंट्स को क्या होता है तो अच्छी ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। वो उसको इंटरेस्ट क्या, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पढ़ाई में रुचि खड़ी कराने की है। पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा होगा, इंटरेस्ट खड़ा कब होगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरे खुद के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे आनंद होगा कि दुख होगा? आपको तो दुख होता होगा ना। पापा मम्मी फिर पीछे लग जाएंगे ना कि भी और भी ज्यादा मार्क लाओ, ऐसा ही होता है। એવું થાય એવું થાય ને તો પપ્પા મમ્મી એવું કરે છે? ના ના એવું થાય તો આવું થાય છે કેમ કહે? મને એમ કે પપ્પા મમ્મી તારી પાછળ પડી જતા હશે, બેન કહેતી હશે ને હજુ વધારે થાય કેપેસિટી, હજુ વધારે માર્ક લાવે, ના ના નથી કહેતી?
તો ભૂલ કહેવાય. તો કહેવા તો ખરું આપણે એવું કહેવાય કેપેસિટી છે. પણ જાતે જ થતું હશે કે હું વધારે માર્ક લાવું હે हाँ पर वो कब होगा कि जब मैं ढंग से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे मेरी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है, तो फिर उधर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा बेटा आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, ऐसा बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता है. तो छोटे थे तब क्या करते थे? मार खाता था. गेम खेलते रहते थे. आपको मार खानी पड़ती थी. બધા છોકરા માર ખાય છે. पापा मम्मी तो मारा ही नहीं है. पापा मम्मी मारते थे तो इंडिया में थे तभी यहाँ था इंडिया ना. में हाँ पर वो भी पता चले उस समय की हमारी समझ कैसी थी कि हमें ऐसा लगा सारा खेलने में ही है, पढ़ाई में कुछ है ही नहीं. उस समय की सोच ऐसी थी ना. आज वही सोच है. क्यों? तो सोच क्यों बदल दी? देखो उधर परिणाम दिखाई दिया कि भाई ये वो एज के लिए बराबर था. अभी आगे लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर तो मुझे इसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा. तो ढंग से पढ़ाई करेंगे तो बात ढंग से समझे तो लाइफ में उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे. तो समझ के साथ पढ़ रहे हैं तो मेहनत भी कम हो जाती है. सीधी बात है कि मेहनत ज्यादा होती है. ना ना उसमें है. हाँ वो कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा तो फिर भी आप भीतर से ब्लंट नहीं हो जाएंगे कि तो मैंने पढ़ाई किया ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्स का क्वेश्चन आएगा, अभी क्या करेंगे? बस એટલા ડેટા લખીને આપી દેવાનું. हाँ ऐसा ही करने का. જેટલા આવડે લખીને આપી દેવાનું. बड़ा एग्जाम्पल था वो 4th सेमेस्टर में था ना, RNA और DNA साइकिल आती थी कोर्स में. तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले लेके बैठा मैं, तो एक भी साइकिल फिट ही नहीं हो रही थी. एक आध घंटा मेहनत किया फिर छोड़ दिया. तो उसके ऑप्शन में जो भी आएगा लिख देंगे. उससे हम लोग ने स्ट्राइक कराई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करने के लिए. तो जो कोर्स हमारे यहाँ पढ़ा ही नहीं था, जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, उसमें से क्वेश्चन आ गया. तो मेरी सारी कॉलेज में उसका आंसर मैंने ही दिया था, मेरा अलावा किसी ने नहीं दिया था. पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया उसका ऑप्शन में. तो जनरल नॉलेज तो था ही अच्छा, तो डेफिनेशन बना दी, उसके टाइप्स बना दिए, प्रॉफिट लॉस सब दिखा दिया. और वो क्वेश्चन मेरे सारी कॉलेज में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स मैंने अटेम्प्ट किया था. बाकी सब तो RNA DNA साइकिल में ही चले गए. अभी टेंशन लेके चलता तो मैं ये आंसर दे ही नहीं सकता था. देखिए यार आपको अभी याद क्यों नहीं रहता था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था. इंटरेस्ट होता तो RNA DNA साइकिल भी इजी है कुछ. अभी आज इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती है. देखिए हर लाइफ में भी ऐसा ही है कि जहां आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, वहां आपको काम करने में कहीं दिक्कत आएगी नहीं. क्योंकि हाँ आपको एक बार इंटरेस्ट खड़ा हो गया फिर पापा मम्मी किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भाई ऐसा करो ऐसा मत करो. अभी बोलते हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. क्यों? જાતે જ ભણી લઉં. ओ जाते જ ભણી લો. તારા ભાઈબંધ ક્યાં છે? अच्छा ભણવા બેઠો છે. ખબર નહીં. હાલ અસાઇનમેન્ટ એસાઇનમેન્ટ કરતો હતો. મારે કહ્યું તું આવું છું પેલા કરી નાખજો. તો મંડે સબમિશન હતો ને એટલે આજે કરવાનો છે રાત પહેલા. મને એવું મંડે સબમિશન જેવું કહેતો હતો એટલે અહીંયા બેઠેલો જોયો ને એટલે હું હોમવર્ક करतो हूँ बस सिंसियरिटी है ना. सत्संग से ज्यादा कीमत अभी उसको पढ़ाई की होगी तो अच्छी बात है ना. अच्छी बात नहीं है. પરિણામ ખબર છે
પરિણામ ખબર છે કે અસાઇનમેન્ટ નહીં જાય તો શું થશે? हाँ, फिर मैंने उसको उस टाइम भी बोला था कि भाई हम लोग आ रहे हैं, उसके पहले ऐसा प्लानिंग करना है, खेलने में टाइम कम देना और ये पहले निपटा देना, तो फिर भी खेलने में पड़ा वैसे रह गया ना। आपको कुछ खाना पकाना का मेहमान आने वाले हैं, तब ऐसा सोचते हैं कि चलो ये सीरियल देखने के बाद करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल है, क्या ये पिक्चर पूरा करके बाद में खाना पकाएंगे, ऐसा करते नहीं करते? नहीं ऐसा। तो उधर परिणाम दिखाई दे रहा है भाई ये टाइम पे आने वाले, उसके पहले हमें पूरा करने का ऐसा, तो बाकी की सारी बात हम साइड पर रख देते हैं। क्या लाइफ में भी ऐसा कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए वो तो हमें समझना चाहिए। देखिए इसको प्रायोरिटी समझ में आ जाए कि आज्ञा में रहने में ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो आप आज्ञा में है किसी की भी, दादा भगवान की आज्ञा ऐसा नहीं बोलता हूं, आप दूसरे की भी आज्ञा में है तो टेंशन किसको होगा? जो आज्ञा दे रहा है उसको टेंशन होता है, पालने वाले को टेंशन नहीं होता है। जॉब करते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे तो टेंशन मैनेजमेंट को होगा ना कि आपको होगा, सीधी बात है। इतना ही समझ लेने का, और ये समझ लिया तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ પ્રશ્ન નથી ના ઓ મને કે છે દીક્ષિત હા બોલ આપી વાત છે હા તો અત્યારે નાખે લાંબા લાંબા ક્વેશ્ચન મને નથી આવડતા। मेरा क्वेश्चन है हाँ प्रतिक्रमण विधि अपन जो बताई हुई है तो उसमें प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी है, देदारी या तो वो देदारी अपना नाम क्यों लेते हैं? मतलब अपना नाम नहीं लेने का, किसने ऐसा बोला? अपना नाम नहीं किसने ऐसा सीखा? पापा ने मम्मी ने किसने सीखा? नहीं सिखाया नहीं है उसमें। आई थिंक उसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है कि या तो मेरे को समझ में गलत आया। मेरी बाणी से संतों को दुख हुआ, भाई पुणे जाने दर्शन थे वहां पहुंची गया। પાછો શું હતું? संबंधित व्यक्ति का नाम प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी है, देहधारी जिनके प्रति हमने हमारे से दोष हुआ है उनका नाम लेने का। ओके। लेकिन जिसके साथ गलती हुई उसका दोष हमने देखा है ना पहले। तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था कि अपन अपना देहधारी वही समझ में नहीं आ रहा इससे मैंने पूछा पापा ने सीखा कि मम्मी ने सीखा? पहले जो सिखाया था कभी किया ही नहीं है प्रतिक्रमण, टू बी ऑनेस्ट। સફળતા ગુજરાતીમાં કહાવત है कि આખું કોરું શાકમાં ગયું, સુનાય છે? सारा पंपकिन सब्जी में चला गया बिना काटे। બીરા કાટે ऐसा हो गया। तो टेस्टी बनेगी सब्जी? आखू कोरू शाक मारे तो टेस्टी हारी बने, अंदर मसालो मिक्स सारो था। अच्छा वो पूछ लिया। यार क्या कि यार जो भावार्थ थे वो भावार्थ समझ में नहीं आता है, तो आपने पापा मम्मी को पूछा भी नहीं होगा, तो उन्होंने कभी बोला भी नहीं, उन्होंने मान लिया होगा कि ये तो ढंग से ही कर नहीं सीखा हुआ है। जब मैं छोटी थी तब मैंने सीखा हुआ प्रतिक्रमण, बट कभी किया ही नहीं है
उसको बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया। मतलब बात करें, अगर सीखा तो समझ में क्लैरिटी रहेगी भैया मुझे मेरा नाम तो लेने का ही नहीं है। नहीं, बट वो तब समझ में नहीं आता था ना, तब मैं छोटी थी, इंटरेस्ट भी नहीं होता था। उसके बाद बहुत लंबा मतलब गैप सब पड़ बोलते गया। हैं इसमें बैठना पड़ता है सत्संग में, जी। ये सबकी हालत ऐसी है। ये सबकी याद ऐसी थी। देखो पता चला ना कि बिना इंटरेस्ट के कर रहे थे तो कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तो प्रतिक्रमण जिसके साथ गलती हो उसका नाम लेने का है, उसने खुद का नाम ले रहे थे। नहीं, लिया ही नहीं, करा ही नहीं प्रतिक्रमण, नहीं, समझ में ऐसा आया जाए। मतलब प्रतिक्रमण भी नहीं किया तो कपड़े ये कैसा हुआ कि घूमते रहे, सब किया, बाद में आके कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल देते हैं। तो जैन है ना, तो साल में एक ही बार कपड़े धोते हैं, संवत्सर के दिन ही कपड़े धोने का ना, उसी दिन नहीं धोने का है। ठीक है यार, दादा ने क्या बताया, गलती जैसे होती है हाँ। पता चला तो उसका सॉल्यूशन ला देने का। तो तुरंत धो देंगे, रोज के रोज कपड़े धोएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, इतने सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए, कब धोएंगे ऐसा टेंशन नहीं पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है यार, जैसे गलती है ऐसा पता चला तुरंत बोले बच्चा इसका भी रिपेयरिंग कर, सफलता को बोलने का कि इसका प्रतिक्रमण कर। और वो हार्टिली कर रही है, ड्रामेटिक कर रही हो, हम उसके देखने और जानने वाले, सीधी बात है। क्योंकि हमें पता चलेगा तो फिर टेंशन क्या आएगा। और ये समझ के साथ करेंगे तब वो प्रतिक्रमण एग्जैक्ट होगा। इसे दूसरी तरह से क्या बताया कि जितनी तीव्रता के साथ गलती की है उतनी प्रतिपक्षी तीव्रता के साथ आप उसका प्रतिक्रमण करेंगे, इंटेंसिटी, तो तब इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम आ गया तो 0-0 हो गया। પ્રતિક્રમણ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત થાય છે પણ થતા જ નહીં, તો એનો મતલબ એવો કે હજી ચીકણા હિસાબ એટલા બધા છે, હજી એક લડાલડ ચાલવાની જ છે, પછી જ થશે। માર ખાવાનો હિસાબ બાકી છે, માર ખાત કરવાનો। એટલે આપણે કહ્યું માર ના ખાવ તો પ્રતિક્રમણ કરજો કે નક્કી કરે તોય થતા નહીં। મને એમ થાય કે મને તો એ વિધિ જ નહીં આવડતી કેવી રીતે કરવાની, એવું થાય। ખાલી ભાવ સમજી લેવાનો આપણે, शब्दों के बोलवानी जरूर नहीं आप हाँ, तो खाली ये जो विधि बताई है वो तो क्या कि सिंबॉलिक है। देखो ये इतनी बातें अंदर कवर होनी चाहिए। એક ક્લાસમાં 2 સ્ટુડન્ટ ભેગા થયા, બે ભેગા થઈને સોલ્યુશન લાવી દો, કેમનું કરવાનું, એક ને 2 સ્ટુડન્ટ સરખા। वो सब गुरु है, स्टूडेंट नहीं है। वो हमें सिखा रहे कि हमारे जैसी गलती मत करना, बराबर है। स्टूडेंट है कि गुरु है? गुरु है। वो सिखा रहे कि हमारे जैसी गलती आप मत करना। અમે તો પ્રતિક્રમણ નહીં કરતા, એ ગલતી કરીએ છીએ એવું શીખવાડીએ અમે તમને તો ना એટલે એવું नहीं, मारे हमें क्या सीखने का है कि भाई गलती करने के बाद प्रतिक्रमण नहीं करते ढंग से, ऐसे आप गलती कर रहे तो वो गलती मुझे नहीं कर रहे, मुझे क्या करने का, गलती जैसे हो तुरंत उसका सॉल्यूशन लाने का, प्रतिक्रमण करके उसका उकेल लाने का है। પ્રતિક્રમણ અહીંના જ નહીં થતા, બીજે બધાના થઈ જાય છે। સ્ટાફ જોડે જોબ પર કશી માથાકૂટ થઈ, કશે પણ હોય, સ્ટુડન્ટ સાઈડ બધું થઈ જાય કે આ શું છે। આપણે મોક્ષે જતા સુધી આપણે જોડે રાખવાના ને, આપણે છૂટા પડવા નહીં દેવાના, એટલે ભાઈ પ્રતિક્રમણ નહીં કરવાનું। ટ્રેન કર્યા તો 7 જન્મ રાખવા પડે જોડે। હા, પણ કેટલામો જન્મ છે એ ખબર નથી પાછો। કઈ બાજુથી સારું। एक दूसरा क्वेश्चन कि अपना जैसे नवकार मंत्र तो हम सीखते हैं छोटे होते, बट ये त्रिमंत्र में अपन ये जो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसका क्या लॉजिक है बताएंगे प्लीज। ऋषभदेव भगवान ने जब मनुष्य को धर्म सिखाया तब ये तीनों मंत्र साथ में दिए थे उन्होंने। अच्छा, ठीक है, तीनों मंत्र कैसे है? किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है,
नौका मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। उस प्रकार की क्वालिटी जिसमें भी प्रकट होती है, खुली होती है, उनको नमस्कार करते हैं। तो ये नमस्कार करके हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के गुण हमारे भीतर भी प्रकट हो, ऐसा न्योता देते हैं, इन्विटेशन दे भी, ये सब सारी शक्तियां हमारे भीतर भी खुली हो जाए, प्रकट हो जाए। तो जो 5 परमेष्टि हम नवकार मंत्र में बोलते हैं, तो उनमें वासुदेव जी और शिव जी नहीं आते हैं, ठीक है? इसलिए पंच परमेष्टि में कौन आते हैं? जी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये तो उसके डेफिनेशन बताए। अरिहंत कौन? तो जिसके क्रोधमान महलों खलास हो गए, अहंकार ममता खलास हो गए, और देह के साथ पूर्ण दशा है, एक वो तीर्थंकर है। सिद्ध, तो सिद्ध तो भी अरिहंत से ऊपर की दशा है, फिर भी दूसरा क्यों रखा? ठीक है, हमें भी ये सिद्ध दशा पानी है, जन्म मर के चक्र से मुक्त होना है, इससे उनका भी नहीं करते हैं। नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार। स्कूल के और कॉलेज के प्रिंसिपल है, धर्म में जो आचार्य, उनको नमस्कार। एक ऐसी बात नहीं है, ठीक है, खुद आत्मा के आचार का पालन करें। तीर्थंकरों ने जो आचार बताया उसका खुद पालन कर रहे हो, दूसरों को पालन करना सिखाते हैं। तो कैसे होते कि आत्मा के अनुभव ज्ञान के साथ, अनुभव कितना, तो तीर्थंकर से नीचे की दशा में। नमो लोहे नमो वश जाना, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार। ठीक है, अरिहंत के सिद्धांत जितने खुद पढ़े समझे, उतना नीचे वाले को पढ़ा रहे। तो वो भी कैसे है कि आत्मा का अनुभव ज्ञान के साथ, अनुभव कैसा है, आचार से नीचे किस चीज का। नमो लोहे सवसाण, ये लोग के सभी साधुओं को नमस्कार। तो साधु आमतौर पर हम किसको बोलते हैं? सफेद कपड़ा पहना, भगवा पहना या दिगंबर है, उसको हम साधु मानते हैं। तो भगवान की भाषा में क्या थे कि वो तो वेश है, वेश के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये जिसने आत्मा की दशा प्राप्त कर ली है, वो चाहे गृहस्थी वेश में हो या त्यागी वेश में हो, वेश के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहा के लिए क्या पता है कि सीधे सरल हो गए तो वो साधु है। कोई साधु होने की जरूरत नहीं, आप संसार में रह के भी सीधे सरल हो गए, टेढ़ापन निकल गया, तो आप साधु हो। टिट फॉर टेट नहीं करते तो आप साधु हो, समझे क्यों? ठीक है, अभी हरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 को जो नमस्कार करते हैं, अभी वो सीट पे, वो गद्दी पे जो आज हाजिर है, उनको पंच परमेष्टि बोलते हैं। और वो पोस्ट पे जो भविष्य में आने वाले हैं, उनको ओम परमेष्टि बोलते हैं। तो ये हम जो ओम बोलते हैं, ओम क्या है? ठीक है, 5 को नमस्कार करते हैं, ओम में आता है। ये जगत जानता नहीं है कि ये 5 को हम नमस्कार कर रहे हैं ओम बोलकर। ठीक है, हमें ये ख्याल में आया तो हमें भाव खड़ा होगा। ऐसो पंचन मुकर, ये 5 को नमस्कार। सव पावक परासव, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलानम च सवे से परमम होई मंगलम, दुनिया में जितने मंगल कार्य उसमें 5 को नमस्कार करना वो सर्वश्रेष्ठ मंगल है, ऐसा हम समझते हैं। बराबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नर में से नारायण हुए, ऐसे वासुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वासुदेव किसको बोलते हैं? देखिए, इस प्रकार के गुण जिसमें प्रकट हुए हैं। हृदय काल चक्र में 8 वासुदेव होते हैं, तो सबसे अंतिम वासुदेव कृष्ण भगवान हुए। उनके पर लक्ष्मण जी, उनके पर और भी 6 होंगे, नाम मुझे भी मालूम नहीं है, तो गूगल को पूछ लेना। बराबर, तो सीधी ना पूछी दो। कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल देखो,
कि जन्म से लेकर मौत तक एक भी सारी जिंदगी उन्होंने व्यवहार कैसे किया, देखिए वो नेगेटिविटी के प्रभाव में नहीं आए कभी भी। सारे सहयोग नेगेटिव आए थे, फिर भी उसके प्रभाव में आके उन्होंने व्यवहार नहीं किया, उसके दबाव में आके व्यवहार नहीं किया। उनका पुरुषार्थ क्या था कि 100% पॉजिटिव रह के व्यवहार किया। तो उनकी भक्ति कर हमें क्या मांगने का, तो आपके जैसे हमें भी पॉजिटिविटी दो। ओम नमः शिवाय, शिव मीन्स कल्याण स्वरूप। जिसका अपना खुद का कल्याण हो गया है तो दूसरों का कल्याण के जो निमित्त है उनको शिव स्वरूप बोलते हैं। तो तीर्थंकर शिव में नहीं आते। जी वासुदेव तीर्थंकर बनने वाले हैं, बट तो वासुदेव में से आगे बन सकते हैं, बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो गारंटी नहीं होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये सब जो डेजिग्नेशन है, पद है, वो व्यवहार से, निश्चय से नहीं है। फिर उस प्रकार की दशा आपकी खड़ी हुई तो आपको वो पद मिल जाता है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है, देखिए इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार है, देखिए वो उस प्रकार के गुण जिसमें भी खुले हो गए, प्रकट हो गए, उनका वो विनय करते हैं, नमस्कार करते हैं। और वो करके क्या करते हैं कि हमारे भीतर भी ऐसे गुण प्रकट हो, ऐसा न्योता देते हैं, इन्विटेशन देते हैं। उस प्रकार के गुण प्रकट हो जाए तो हमें भी कुछ करने का बाकी रहेगा नहीं। फिर वो बोलता है अंधा बन, ऐसा हो जाएगा। तो केवल ज्ञाता दर्शक, कुछ करने का बाकी रहेगा नहीं। अच्छी नहीं करो ત્યાં સુધી તો કરતા પણ રહે જ। અરે ધંધા બેન ની જ વાત કરું, શુદ્ધાત્મા તો મારે કહેવાય જ નહીં ને। હા, તો તમારે અંધાબેન ની ગાદી પર આપણે શુદ્ધાત્મા ની ગાદી પર। અંધાબેન ને કહો કે તમારી ગાદી છોડવાની નહીં, એટલે ડ્રામા બનાવો પાકો કરજો, કે રોલ બનાવો પાકો કરજો કે બહુ ઇમોશનલ થઈ જાય ને તો ખબર પડી કે ગાડીમાંથી ઉતરી। બરાબર, અહંકારના લીધે એટલે હું તો बुद्धि भी इमोशनल करती है साथ में, आपका हिसाब, पिछला हिसाब भी आपको इमोशनल करता है। एक आरती और दिव्य में क्या फर्क है, मतलब अगर आरती और दिव्य में से एक करना होता है तो हमको आरती करनी चाहिए, दिव्य करना चाहिए? दिया कि इसमें जो दिया है ना, अच्छा, ये दादा दीवो और दादा आरती। हाँ, ये तो क्या है कि ये सब चीज अलग अलग है ना। जी जी। तो यहाँ आरती करते किसकी करते, दादा भगवान की करते हैं। दादा भगवान के वो व्यवहार से ऐसा कि दादा भगवान की आरती करते हैं, क्योंकि वही दादा जीव माता के भीतर है कि नहीं, आपके अंदर भी वही दादा भगवान है, हर एक जीव माता के अंदर वही दादा भगवान है। आरती हम किसकी कर रहे हैं, हमारी खुद की कर रहे हैं, दूसरों की नहीं कर रहे हैं। देखिए समझ के साथ करके कितना भाव खड़ा होगा, बात ख्याल में आ रही है। आपको आपके बॉस की भक्ति करनी है, अंडर प्रेशर करना पड़ेगा। आपके भीतर की भगवान की भक्ति करने के तो उसमें कुछ दबाव आएगा ही नहीं, प्रेशर होगा ही नहीं। तो भक्ति अच्छी तरह से होगी ना, भाव से होगी ना, कि भाव खुला खड़ा करना पड़ेगा। तो भाव खड़ा करना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं आएगा, भीतर से आएगा। ठीक है यार, ये सारी बातें जो बताइए ना, वो हम हमारे खुद के लिए कर रहे हैं। आप जितनी करें, चरण विधि कौन करेंगे, सफलता जी करेंगे, लेकिन वो चरण विधि करके क्या कर रही है, तो निश्चय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना भीतर जो शुद्धात्मा पद है उसमें ज्यादा जागृति बनी रहेगी, वो कमाई ज्यादा है।
तो मोबाइल की बैटरी तो हफ्ते 15 दिन में एक ही बार चार्ज करते होंगे ना। हाँ? दिन में भी 2-3 बार कर लेते ना। हाँ જેટલો યુઝ થાય જેટલો વપરાય ચાર્જિંગ એટલી વાર ચાર્જ हाँ, तो यहाँ बात यही समझने की है कि जैसे मोबाइल की बैटरी बार बार रिचार्ज करते रहते हैं, वो प्लान भी पूरा नहीं। हाँ પછી આયુષ્યન દિવસ કે પછી બોલાય ને એટલે हाँ પછી हाँ, वो मोबाइल का प्लान भी पूरा नहीं हुआ, इसकी कितनी जागृति रखते हैं। और यहाँ तो हम जागृत रहते ही नहीं है। देखिए ये करने से क्या होता है कि बैटरी चार्ज हो जाती है, तो उतनी आपको मेहनत कम हो जाएगी। बात ख्याल में आ रही है? देखो उतना ज्यादा आप अपने खुद के स्वभाव में रह पाएंगे। आप ये आरती का बता रहे हैं, जीवन का बता रहे हैं, स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। मतलब अगर लाइक मेरे को स्टार्ट करना है अभी, तो मुझे आरती एक चीज करनी है। स्वभाव एक काम करना, अभी सत्संग पूरा करते, बाद में फिर हम बैठे ही ओके ऑफिशियली पूरा करते कितना वो टाइम के हिसाब से, ओके ओके फिर बैठे ही जी जी देन यू कैन आस्क कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। बराबर है? ठीक। तो आप एक जुगल जोड़ी में हाँ। कीर्तन रुपी हो आइए आगे आइए, आइए मैदान में आइए। बराबर है। तो आगे रहे तारे बड़ा पाछे कसू पड़े। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। ભગવાન
સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના 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 સિંહ જય જયકારો સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના 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 સિંહ જય જયકારો